امریکی صدر کا ایک بار پھر ایران پر حملے کا اشارہ، ایرانی حکام سے ممکنہ ملاقاتوں کا امکان مسترد، مظاہرین احتجاج جاری رکھیں، جلد مدد پہنچنے والی ہے، زیادتی کرنے والوں کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ایران کی صورتحال پر مشیروں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر امریکی فوج کی سرگرمیاں تیز، B-52 طیاروں اور ایئر فیولنگ ٹینکرز کی پروازیں، امریکہ نے اپنے شہریوں کو ایران سے فوری نکل جانے کا پیغام دے دیا۔ ایران نے امریکی صدر کی دھمکیاں مسترد کر دیں، پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ، صورتحال معمول پر آنے لگی، 2 ہفتے جاری رہنے والے مظاہروں میں 2000 اموات کی اطلاعات۔ امریکہ اور ایران میں بڑھتی کشیدگی کم کرانے کے لیے قطر میدان میں آ گیا، فوجی تصادم کے خطے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، چاہتے ہیں ایسی کسی بھی صورتحال سے ہر ممکن طور پر گریز کیا جائے، قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ایران کے خلاف معاشی پابندیاں مزید سخت، امریکہ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا، حکم حتمی ہے اور اس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا، ٹرمپ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر پیغام۔ یورپی یونین کا بھی ایران پر مزید اقتصادی اور تجارتی پابندیاں لگانے کا اعلان، جرمنی، برطانیہ اور کئی یورپی ممالک کی جانب سے مظاہرین کے خلاف ایرانی حکومت کے ایکشن کی مذمت۔ چین نے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں اور دوسرے ممالک پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی مخالفت کر دی، چین کی جانب سے ٹیرف کے بے جا استعمال کے خلاف موقف بالکل واضح اور مستقل ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا ایکس پر پیغام، کہا ٹیرف اور تجارتی جنگ میں کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، دباؤ اور دھمکیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، بیجنگ نے بات چیت اور تعاون ہی مسائل کا بہتر حل قرار دیا۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بندرگاہوں سمیت تمام معاہدے منسوخ کر دیے، دفاع اور سیکیورٹی تعاون سمیت صومالی لینڈ کی حریرہ بندرگاہ کا معاہدہ بھی ختم، متحدہ عرب امارات نے صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچایا، صومالی ماہرین نے متحدہ عرب امارات کو صومالی لینڈ میں اسرائیلی اثر و رسوخ بڑھنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان کا GHQ میں DGI-SPR سے ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی، پاک فوج سے غیر متزلزل یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار، فتنہ الخوارج کی دہشت گردی کی مذمت، کشمیر اور غزہ پر اصولی مواقف کی توثیق۔ more likely کہ بدھ یا the latest جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ متفقہ امیدوار ہے، وہ اکیلے امیدوار ہے، نہ اپوزیشن کی طرف سے کسی اور نے ڈاکومنٹس جمع کیے، نہ کسی کا کوئی ارادہ ہے۔ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ حل ہو گیا، اسپیکر نے جمعرات کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایاز صادق سے ملاقات کے بعد چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی گفتگو، PTI میں فارورڈ بلاک کی تردید، بانی کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے کسی رہنما کو آج بھی بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، PTI اور کارکنان کی بڑی تعداد دن بھر ناکوں پر موجود رہی، پولیس نے کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ سابق وزیر اعظم کی بہنوں نے ایک بار پھر کارکنان کے ہمراہ فیکٹری ناکے پر ڈیرا جما لیا، علیمہ خان نے سہیل آفریدی کا دورہ کراچی کامیاب قرار دیا۔ اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اٹھتے ہی پھر تنقید کرنا بھی شروع کر دی۔ آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی، وہاں پہ کچھ گھنٹے آپ پھنس گئے، تو حکومت سندھ کو سے کیا فائدہ ملا؟ کیا مقصد پورے ہوئے؟ جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی، اور پھر جو ظاہر ہے ان کو 1 ڈیڑھ گھنٹے کی دیر ہوئے جو لیٹر کی، وہ لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی، باغ جناح گراؤنڈ میں پولیس اور میڈیا کو نشانہ بنایا گیا، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا الزام، کہا کہ حساس اداروں نے باغ جناح میں سیکیورٹی خطرات سے آگاہ کیا، سہیل آفریدی کو بھی صورتحال کا علم تھا، لیکن انہوں نے جلسے کے لیے مرضی کا روٹ اختیار کیا، سیاسی مخالفین کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کی۔ شرجیل میمن نے حیدرآباد سے واپسی پر سہیل آفریدی کو روکنے کا الزام بھی مسترد کر دیا۔
सुहेल आफरीदी बताएं कि दहशत गर्दी में अफवान नहीं तो कौन मुलव्विस है। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला कहते हैं कि अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के सबूत फराहम किए जाएं। सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो मरकूज करे। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबको बड़े खुले ज़हन और बड़े खुले दिल के साथ, बड़े ज़र्फ़ के साथ बैठ के एक नेशनल डायलॉग और फिर उस पर कंसेंसस करना चाहिए कि हमें एक पायदार, जारी रहने वाला, कॉन्टीन्यूटी वाला, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने इख्तियारात की मुंतकिली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी करार दे दी। मकामी हुकूमतें पूरी तरह बाइख्तियार होंगी, कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए, आइन भी यही कहता है। वज़ीर कानून का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आसिफ जरदारी को भी धोखा दिया गया और उनके साथ भी बारीक वारदात डाल दी गई। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का, उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको खबर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। पलवश खान का मुबैना जाली ऑर्डिनेंस के जरिए सदर मुमलिकत के साथ बारीक वारदात का दावा। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वाले को फारिग करने का मुतालबा। ये ऑर्डिनेंस कल सबके गले का फंदा बन सकता है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। बिलावल भुट्टो ने शोबा सेहत के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जिन्ना सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कामयाब ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला पार्लियामान में पहुंच गया। सेनेट की कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली की चेयरमैन शहरी रहमान ने चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को तलब कर लिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ नज़रअंदाज करना कौमी मफाद के खिलाफ करार। हुकूमत को अचानक कैसे याद आ गया कि दरख्तों से पोलन फैल रही है। शर्मिला फारूकी का कौमी असेंबली में खिताब। मैं समझता हूं कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या इस्लामाबाद की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अगर आप लोग इस्लामाबाद के सिटीजन्स को एतमाद में लेके एक काम करें तो लोगों को बदएतमादी नहीं होगी। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। अली मोहम्मद खान का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर शहरियों को एतमाद में ना लेने का शिकवा। जो दरख्त काटे गए वो इस्लामाबाद के लिए ऑक्सीजन का काम करते थे। पीटीआई रहनुमा का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। 29,000 दरख्त काट कर 40,000 दरख्त लगाए। 60,000 दरख्त मजीद लगाए जाएंगे। तलाल चौधरी का जवाब, दरख्त काटने का फैसला किसी एक शख्स ने नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का चेयरमैन सीडीए को हदफ ना बनाने का पैगाम। मुसद्दिक मलिक का शकरपड़िया में काटे गए दरख्तों के मकाम का दौरा। मकामी दरख्त लगाने के अमल का जायजा लिया। पेपर मलबरी के दरख्त पोलन एलर्जी पैदा करते हैं, जिससे 37% तक शहरी मुतासिर होते हैं। हर काटे गए दरख्त के बदले सीडीए 3 नए दरख्त लगाएगी। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली की यकीन दहानी। किसी भी कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई का इंतबाह। विफाकी आईनी अदालत ने बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दिया। अटक सीमेंट की बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पिटीशन मुस्तरद कर दी गई। एक कानून के विफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है, मकसद अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस आमिर फारूक का 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पंजाब भर में 2026 के आगाज पर 3 लाख से जायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी। 1,37,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर और 1,48,000 से जायद ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद करवाई। 1400 पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाए। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस वकास नज़ीर ने बड़ी तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना खुशाइंद करार दे दिया।
रावलपिंडी के बहरिया टाउन के फ्लैट में गैस लीकेज से 3 खवातीन जाम बहक, एक को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रशीद कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से आग भड़क उठी, 55 शख्स झुलसकर जाम बहक। लहिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में घर में आतिश ज़दगी से 3 कम उम्र बहनें जान से चली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आतिश ज़दगी का वाक़या शॉर्ट सर्किट के बाइस से पेश आया। जां बहक बच्चियों में 1.5 साला दुआ, 3 साला उरूज और 7 साला जवेरिया शामिल। स्वात और अतराफ के इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे, शहरी खौफज़दा होकर घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड, गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफगान सरहद था। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी बंद करने का फैसला। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज ख़त्म करके कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी बंद करने का फैसला। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन के हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज ख़त्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम किया जाए। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहीं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद, सियालकोट मोटरवे M11 पर काला शकाकू से समड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। धुंध छटने के बाद मोटरवे खोल दी गईं। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हमास हाजिम कासिम ने वाज़ेह किया कि गजा के इदारों से दस्तबरदारी का फैसला हतमी है। फैसला सदर ट्रंप के गजा आमन कौंसिल बनाने के बयान के बाद किया गया। हमास ने गजा का इंतजाम खंडर बने गजा में तूफान ने तबाह हाल फ़लस्तीनियों की जिंदगी अजीलन बना दी है। शदीद बारिशों और इमारतें मुनहदम होने के वाक़यात में 8 अफराद शहीद हुए। अमरीका में रमज़ान के पहले हफ्ते में आइस फोर्स की हिरासत में 4 तारकीन वतन की हलाकत का इंकशाफ। आइस मराकज़ में 59,000 अफराद ज़ेर हिरासत। अमरीका में 8,000 तलबा समेत 1 लाख से ज़ायद अफराद के वीज़े मनसूख। मुजरिमाना रिकॉर्ड और कानूनी खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद होने पर वीज़े मनसूख किए गए। अमरीका को महफूज रखने के लिए मुल्क बदरी और वीज़ा मनसूखी जारी रखेंगे। महकमा खारजा का 2 टोक पैगाम। अमरीकी वज़ीर दिफा ने XAI प्लेटफॉर्म ग्रॉक को अमरीकी फौजी नेटवर्क में शामिल करने का ऐलान कर दिया। पैट हैग्सेथ ने शराकतदारी टेक्नोलॉजी में अमरीकी बढ़तरी कायम करने के लिए अहम करार दी थी। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि जंग में वही कामयाब होगा जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से नई टेक्नोलॉजी को अपनाएगा। मसनूई ज़हानत मुल्क के मुस्तक़बिल को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अफगानिस्तान और भारत में कुर्बतें बढ़ने लगीं। अफगान तालिबान रजीम ने नई दिल्ली में अपना पहला सीनियर सिफारती नुमाइंदा तैनात कर दिया। नूर अहमद नूर ने हिंदुस्तान में बतौर नाज़िमुल उमूर जिम्मेदारियां संभाल ली। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के नए तनाज़े का शिकार। भारत का अमेरिका के पाकिस्तानी नैयाद खिलाड़ियों को वीज़ा देने से इनकार। अली खान ने भारतीय वीज़ा न मिलने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तानी नैयाद अमेरिकी क्रिकेटर मोहम्मद मोहसिन को वीज़ा नहीं दिया गया। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने पर इसरार। बांग्लादेशी बोर्ड ICC से वर्चुअल मीटिंग में मौक़िफ़ पर डट गया, पीछे हटने से इनकार। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच। अमरीकी टीम के पाकिस्तान के 285 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। सऊदी फुटबॉल लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर को लगातार तीसरी शिकस्त। अल हिलाल ने 3-1 से कामयाबी समेटकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। और फिल्म डायरेक्टर ने फल बेचने वाली लड़की की जिंदगी बदल कर रख दी। अमरीकी फिल्म द ड्रीम सिंड्रेला की नई झलकियां शायकीन में मकबूल।